हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएसए जयपुर। क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के लिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं, विच इज चैप्टर नंबर फर्स्ट, पावर शेयरिंग। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम इस चैप्टर के नोट्स क्लियर करेंगे, साथ ही साथ इस चैप्टर को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि छोटे से छोटे कंसेप्ट भी आपके इसके क्लियर होंगे। सो मेरा नाम है निखिल, लेट्स स्टार्ट चैप्टर पावर शेयरिंग, राइट? So what we are going to study in this chapter? With this chapter, we will resume the tour of democracy that we have started last year. In previous class 9th, you have already studied about the democracy, what democracy actually means, what Nelson Mandela's opinions were there about democracy, what he stated about democracy, right? So democracy के बारे में हमने we already discussed in class 9. So in this chapter also we will just resume our tour with the democracy part, right? Now what it says, an intelligent sharing of power among a legislature, executive and judiciary is very important. देखिए, there are certain states, nations where the power is distributed among the different organs of the government. So basically there are three organs of the government. Those are legislature, judiciary and the executive and the judiciary. Then that is very important to share the power among all the three organs of the government, right? We will start with two stories of Belgium and Sri Lanka. So in today's class we will discuss about Sri Lanka's and Belgium's story, right? Both these stories are about how democracy is handled demands for power sharing. देखिए, एक problem create होती है when there is democracy in the country, and what the problem is कि जब पावर लोगों के हाथ में, लोगों के पास आ जाती है, राइट? तो वहां पर ये प्रॉब्लम आती है कि जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं, दे ऑलवेज सप्रेसेस टू द माइनॉरिटीज, राइट? एंड एक स्टेटमेंट हमारे यहां से क्रिएट होता है कि मेजॉरिटी ऑलवेज सप्रेसेस द माइनॉरिटी. इन दैट केस हाउ द बैलेंस इज टू बी मेंटेन, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ Belgium and Sri Lanka. So in our story, first we will take the story of Belgium, right? Belgium is a small country in Europe, means it's too small country in Europe. मतलब इसका जो अगर हम एरिया की बात करें, so it's smaller than our Haryana area only, right? So we just look at the map of Belgium, then you can observe that it's three side covered with three different countries. In one part it is having the France, another it is having the Germany, and in the third part it is having the Netherlands. So these are the three countries which shares land boundaries with this Belgium, right? So what it says, it has borders with Netherlands, France and Germany, right? Now we will read about the language composition, how the language comprises and how many people speak which language in Belgium. So 59% in the Flemish region speaks Dutch. So if we talk about the Flemish region, so there are 59% people who just speak Dutch language, right? So if we just look at this pie chart, so in 59% these are Flemish people, right? Then another 40% people live in Wallonia region. वेलोनिया रीजन में जो 40% लोग रहते हैं सब, वो क्या बोलते हैं? वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है? तो दिस रीजन इज वेलोनिया. नाउ 59 प्लस 40, दैट इज मेजरली 99% आउट ऑफ 100. सो ओनली 1% पीपल आर देयर हु स्पीक्स जर्मन देयर, राइट? सो थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज आर स्पोकन, जनरली स्पोकन in Belgium. One is the Dutch, another is the French, and third is the German language, right? So remaining 1% of the Belgians speak the Germany, right? Now in the capital city of Brussels, अच्छा इसी बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है दैट इज द ब्रुसेल्स. वहाँ पर थोड़ा जो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है या स्ट्रक्चर ऑफ जो हम कहें कि भाई स्पीकिंग कैसी है वहाँ पर, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स है बेटा. इन दैट ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच. वहाँ पर मेजरली पार्ट जो है वो किसका है? फ्रेंच पीपल का है, राइट? French speaking people. Then 20% are Dutch speaking, only 20% are there who speaks Dutch.
So this is just reverse about what Belgium is actually having. The problem comes here. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. अब यहाँ पर समस्या क्या हुई कि भाई जो minority में थे वो कौन थे? French people, है ना? But they were actually rich. ये कैसे लोग थे बेटे? ये rich थे और साथ ही साथ ये powerful भी बहुत थे, right? This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of the economic development and education much later. अब ये जो minority वाले लोग थे, जो French people थे basically, तो जो French people थे they always show their supremacy among above the Dutch people. So Dutch people जो है या Dutch जो speaking लोग थे वहाँ पर वो इसको बिल्कुल भी accept नहीं करते थे. They always resented कि भाई कैसे भी करके हमें इसको क्या करना है? Oppose करना है, right? Now the tension between two communities was acuter in Brussels. अगर हम ब्रुसेल्स की जगह की बात करें, कैपिटल सिटी जो थी बेटा, वहां पर ये प्रॉब्लम और ज्यादा इंटेंस थी, बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड थी. Like other nations in the South Asia region, श्रीलंका has a diverse population. अब श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको कि श्रीलंका में बेटा जी क्या है, वहां पर भी ऐसे ही आपको डाइवर्स पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती है. ठीक है, डाइवर्स पॉपुलेशन मतलब जहां पर अलग अलग लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है पॉपुलेशन के द्वारा. नाउ द सिन्हाला स्पीकर्स वर 74% and Tamil speakers were 18%. So if we talk about the language composition there, so majorly the language which is spoken there is the Sinhala, which is spoken by 74% of the people living in that region. And if we talk about the Tamil speakers were only 18% there. Okay, among Tamils there are two subgroups. अच्छा, Tamil में भी वहाँ पर हमने two subgroups बना दिए, ठीक है. And what were these subgroups? Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils. The first one was Sri Lankan Tamils and another called the Indian Tamils. अच्छा, what were those? बात करेंगे दोनों के बारे में. Sri Lankan Tamils were those people who used to speak Tamil language and they were Sri Lanka was their native place. But if we talk about these Indian Tamils now, so those were the persons whose forefather came during the colonial period for plantation works, right? And they reside here only. So these are, their origin is actually the India. That is why they are called the Indian Tamils. Okay. Now, so here we have a quick review test which is called the QRT. I need answers in the comment box. इस सब के answers आप लोग मुझे comment box में देने वाले हैं, right? इन सब के जो आंसर्स हैं we will discuss later in the next video, right? So let's see what's there is there in first question. How many people speak French and Dutch in the capital city of Brussels? That we have already studied. अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है. How many people French बोलते हैं कितने लोग और कितने लोग Dutch बोलते हैं. लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर ब्रुसेल्स की बात की जा रही है, राइट? ब्रुसेल्स में कितने फ्रेंच और कितने डच स्पीकिंग लोग हैं, तो आपको उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है. देन हियर वी हैव द सेकंड क्वेश्चन. हाउ मेनी टाइम्स लीडर्स ऑफ बेल्जियम अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन? इसको हम आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि बेल्जियम में बेटा जी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अमेंड किया था कुछ ईयर्स में, तो वो कितनी बार अमेंड किया था? आंसर जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ठीक है? इसी का आंसर आपको इसके वीडियो में मिलने वाला है. नेक्स्ट options are 2 times, 3 times, 4 times or 6 times. Here we have next question. Which was the only official language of Sri Lanka? Sri Lanka, right? So we have already studied about this question. There are different speakers, there are language speakers, right? So which is the official language, only official language of Sri Lanka, right? So we have 3 options here: Tamil, Malayalam, Sinhala or none of the above. Let's see what's there in the question number 4. It's a tricky one. Okay, so it's a tricky question. Which is the national language of India? भारत की राष्ट्रभाषा, ध्यान दीजिएगा, भारत की राष्ट्रभाषा. Which is it? So we have 3 options here. We have 3 options here. First is the हिंदी. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, सभी जानते हैं, ऐसा है क्या? बताइएगा. Second option is the English.
एंड थर्ड वन इज संस्कृत. संस्कृत इसको भी हम कहते हैं कि भाई देवताओं की लैंग्वेज है, राइट. तो हो सकता है कि यही हो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. Whatever. The correct answer should be mentioned in the comment. Okay, and I'll share the answer of these QRT in our next video. Or none of the above. इनमें से कोई भी नहीं. आपको बताना है correct answer in the video. Okay. Let's resume to our notes. Now we are studying about the majoritarianism in Sri Lanka. What does this word means? Majoritarianism. क्या होता है बेटा majoritarianism? Let's break this word. मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी से ही आया क्या? एनिज्म. दोनों को जब ऐड किया हमने तो आ गया क्या? मेजॉरिटेरियनिज्म. दैट मीन्स देयर इज समथिंग कॉल्ड कि मेजोरिटी के बारे में यहाँ पर जो है वो मेजरली बात की जाने वाली है, राइट. तो श्रीलंका में मेजोरिटी के बारे में क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम्स वहां पर क्रिएट हुई थी, वो सब अपन पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में. ठीक है जी. सो लेट्स रिज्यूम. व्हाट इट सेज, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. ये क्वेश्चन हमेशा आता है हमारे बोर्ड में. तो इसको अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यस इसको अंडरलाइन कीजिएगा बेटा कि व्हेन डिड श्रीलंका गॉट इट इंडिपेंडेंस. सो इट वाज द ईयर 1940. 1948 में श्रीलंका को जो है वो इंडिपेंडेंट बनाया गया था. द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over the government. We have already read about that. 74% in the Sri Lanka were only Sinhala communities members, right? So वो थे majority में, and other percent Tamils, they were in minority. So what they always do, they try to suppress the Tamils. वो क्या करते थे? Majority always tries to suppress the Tamils. Now in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. और यहाँ पर एक जबरदस्त एक्ट पास हो गया जिसके चलते लोगों में बहुत ज़्यादा जो है वो डिसग्रेस आया, बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट जो है वो आया. एंड व्हाट दैट एक्ट स्टेट्स, 1956 में आया एक्ट. इसने कहा कि साहब सिन्हाला जो है दैट शुड बी द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट शुड बी दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका. और यहाँ पर जो तमिल लैंग्वेज है ना, इसको हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले हैं. ठीक है जी. हमारे लिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज है श्रीलंका की वो क्या हो गई? सिन्हाला लैंग्वेज, राइट. सो कौन से ईयर में वो एक्ट पास हुआ था? इट वाज द ईयर 1956. इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. नेक्स्ट पॉइंट सेज a new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. वहां पर एक नेशनल रिलीजन भी आ गया. इंडिया का भी कोई नेशनल रिलीजन है क्या? नहीं. वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, राइट. हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं. वी आर अ सेक्युलर कंट्री. बट इफ वी टॉक अबाउट श्रीलंका, सो देयर वाज अ नेशनल रिलीजन एंड दे फॉस्टर्ड दैट रिलीजन. द नेम वाज द बुद्धिज्म. बुद्धिज्म को वो बहुत ज्यादा लोग प्रैक्टिस वहां पर किया करते थे. Now all these coming measures, one after the other, gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. अब यहाँ पर क्या हो रहा था भाई कि श्रीलंका में मेजॉरिटी क्रिएट हो रही थी धीरे धीरे करके. सिन्हाला कम्युनिटी की लैंग्वेज उनकी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई. उनके धर्म को जो है, इनके रिलीजन को है जो है वो नेशनल रिलीजन मान लिया गया. तो जो वहाँ पर रहने वाले श्रीलंकन तमिल्स थे बेटा जी, श्रीलंकन तमिल जिनका नेटिव प्लेस ही श्रीलंका था हमेशा से, उन्होंने कहा कि हम तो भाई यहाँ पर क्या हो गया, हम तो एलियन हो गए. यहाँ पर एलियन मीन्स कि हम यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते, मतलब अपनी ही कंट्री में उनको पराये की भावना जो है वो डेवलप होने स्टार्ट हो गई. सो एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन्ड ओवर टाइम. और धीरे धीरे करके ये चीज़ जो है वो आपस में कम्युनिटीज में क्या हुई, एक रिलेशन को खराब करना स्टार्ट हो गई. द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स. अब श्रीलंकन तमिल्स ने कहा भाई इसके लिए तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए. तो उन्होंने कई सारी पार्टीज फॉर्म की बेटा श्रीलंकन तमिल्स ने, एंड स्ट्रगल्स किए बहुत सारे कि कैसे भी करके हमें भी पार्टिसिपेशन मिले गवर्नेंस में. ठीक है, हमारी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जाए. देखते हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ. नाउ बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड. बार बार ये लोग आते थे कि हमें भी हमारी लैंग्वेज को भाई रिकॉग्नाइज किया जाए.
हमारे भी धर्म को जो है वो माना जाए, बट रिपीटेडली इनके जो डिमांड्स थी उसको मेजॉरिटी के द्वारा क्या किया जाता, सप्रेस कर दिया जाता, एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, राइट. So distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into civil war. And finally what happened? कि एक civil war create हुआ लोगों में आपस में इतना ज़्यादा discontent हो गया, आपस में एक दूसरे की शक्ल जो है वो देखना पसंद नहीं करते थे दोनों कम्युनिटी के लोग, ठीक है. सिन्हाला कम्युनिटी के पार्टीज में, गैदरिंग्स में जो है दूसरी कम्युनिटी, तमिल कम्युनिटी के लोग नहीं जाते थे, तमिल कम्युनिटी की पार्टी एंड गैदरिंग्स में सिन्हाला कम्युनिटी के लोग नहीं जाते थे. आपस में एक डिसकंटेंट दोनों में हो गया और लड़ाई और काफ़ी सारे स्ट्रगल्स हो गए, और इसको हमने एक नाम दिया विच इज कॉल्ड सिविल वॉर. व्हाट इज सिविल वॉर? सिविल वॉर मीन्स व्हेनेवर द वॉर क्रिएट्स अमंग द पीपल ऑफ अ नेशन, ठीक है, दैट क्रिएट्स अ सिविल वॉर. द सिविल वॉर कॉज अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री. अब भाई सिविल वॉर है, लोग आपस में एक दूसरे को इतना ज़्यादा हीन भावना से देखते थे, ठीक है, हेट करते थे, तो क्या होगा? फाइनली देयर वाज अ ह्यूज लॉस ऑफ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री. कि आपस में लड़ाई झगड़े होंगे तो ये सब चीज़ें तो क्या होंगी साहब, लॉस होने ही वाला है. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन दी बेल्जियम. सो आई होप श्रीलंका का केस आपको जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अभी हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्या क्रिएट हुई, ठीक है. So in next video we will discuss about how these problems were actually sorted out. Now, what they told, accommodation in Belgium. Let's see what it says. Belgium recognized the existence of regional differences and cultural diversities. Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times. Okay? So as to work out an arrangement that would be enable everyone to live together with the same country. So basically what happened in Belgium, they recognize कि देखो भाई अगर सबको साथ में रहना है तो आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी हमें सीखनी पड़ेगी. एक दूसरे की लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना, ये हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम साथ में रह सकते हैं. तो what they did during this period, they amended their constitution 4 times. Amended मतलब उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार एडिट करा, ठीक है. अब क्या हुआ साहब आगे? Here are some of the few elements of the Belgium model. और वो एक मॉडल तैयार किया गया जिसका नाम दिया गया बेटा जी बेल्जियम मॉडल. उस मॉडल में क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि बेल्जियम ने किस तरीके से अपने जो डिफरेंसेस है उनको सॉर्ट आउट किया, ठीक है. तो आपको आंसर देना होगा यहाँ पर क्या कि एक बेल्जियम मॉडल वहां पर क्रिएट किया गया था. व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ दोज मॉडल? लेट्स स्टडी अबाउट दैट. सी व्हाट इट सेज, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. वाओ, वंडरफुल. दैट मीन्स इन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक लड़ाई खत्म कर दी एक तरीके से. इन्होंने क्या कहा जी, लेट्स फॉरगेट अबाउट द मेजोरिटी और माइनॉरिटी. इफ वी टॉक अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो इन दिस 50% and 50% seats they have divided among the Dutch and French speaking people. ठीक है. So this was the first step taken in this Belgium. Okay. Next to it is many powers of the central government have been given to the state government of the 2 of the regions of the country. And देखिए अब जैसे कि बात की जाए, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पर सारी पावर जो है वो स्टेट के पास नहीं होती, सेंट्रल के पास होती है. फॉर दैट मैटर यहाँ पर इसका अपोजिट किया गया कि कई सारी मेजर पावर्स जो हैं वो किस में डिवाइड कर दी गई, वो स्टेट में डिवाइड कर दी गई. ठीक है, डिफरेंट जो स्टेट्स है 2 रीजन्स के, उनमें वो डिवाइड कर दी गई ताकि अपना अपना रूल वो आराम से कर सके. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्रुसेल्स हैज सेपरेटेड गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. अभी अपन ने बात की थी बेल्जियम की. नाउ विल टॉक अबाउट द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम विच इज द ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स को एक जो है वो बात करेगी क्या कि ब्रुसेल्स हैज सेपरेटेड गवर्नमेंट इन विच द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, ये दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा कहाँ पर, ब्रुसेल्स में भी. लेकिन यहाँ पर जो गवर्नेंस दी गई, ब्रुसेल्स को कहा कि आपकी अलग अपनी अब गवर्नमेंट बनाओ. अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट,
देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है बेटा इसमें से कि अगर हम दोनों कम्युनिटीज़ को बात करें, दोनों टाइप की गवर्नमेंट को हम अगर बात करें, तो एक तीसरी गवर्नमेंट और क्रिएट की गई विच इज़ कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट में जो रिलीजन वाइज गवर्नमेंट थी वो बनाई गई थी, ठीक है। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। तो यहाँ पर लोगों की बात में समझ आ गई कि भाई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, आपस में अगर हमें साथ मिलकर के रहना है, फॉर दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन एज वेल एज द लैंग्वेज, राइट। सो ये चीज़ जो वहाँ पर अंडरस्टूड की गई, तभी से वहाँ पर जो है वो एक शांति क्रिएट हो गई। तो श्रीलंका shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to suppress, to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. और यहाँ पर हमें पता लगा क्या, एक एग्जाम्पल हमने लिया किसका, श्रीलंका का। क्या देखा आप लोगों ने कि श्रीलंका में हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर दोनों कम्युनिटीज आपस में ये देखती रहेंगी कि मैं सुप्रीम हूँ, आई शुड बी इन द मेजोरिटी एंड आई शुड सप्रेस दी माइनॉरिटी वंस, इन दैट पार्ट क्या होगा कि फाइनली देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ वॉर विच वॉज ऑलरेडी क्रिएटेड among the people of the country, that was known as a civil war, and there is the position that we should say कि एक unrest की जो situation है वहाँ पर वो create होगी, right? So today we have discussed till now, ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको discuss किया। इस chapter का next part and final part हम अपने next video में discuss करेंगे। मैंने यहाँ पर जो QRT आपसे शेयर किया था, ठीक है, आई नीड आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, इसी वीडियो में आपको उसके आंसर्स मिलने भी वाले हैं, राइट। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं एंड अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, ओके, थैंक यू।